Good evening and welcome to the Wednesday session. I welcome you all to the Spirituality and Healing Meet. And today's agenda, if any one of you remember, can just repeat what I had posted. Anybody who has read my post today? Wednesday group. Yes. What is the agenda for the meeting today? Law of being, a choice of misery or joy. Choice of misery or joy. That was the law of being. That is what we're going to discuss today, right? But before we get on to the topic, let me ask someone, ask all of you, if you have any questions, any doubts, anything you want to share on whatever is your understanding since the last 2 weeks, and also whatever you have learned in the Friday session. So one thing which I wanted to know from everybody was, what do you understand by your being? Number one, that is the starting point of today's session. So let us look at what do you understand by being, and then we move on to the topic, which is law of being, a choice of whether you want to live a life of misery or joy. So choice of joy or misery. That is what the being is, right? Like we talked of two beings. Kavan was just mentioning that we have two beings. One is a divine being and a devil being. So in practical aspects of life, you would experience that as a joyful being or a miserable being. Yeah. So if you are miserable, feeling miserable, then you are in that miserable state of being. And if you're feeling joyful, then you're in the joyful state of being, which is the divine, right? Now, what is being? How do you experience being in your life? Anybody who wants to share? Yes, Amitji, go ahead. I think for me, being is being in the moment, absolutely here and now. Awareness, if I further have to explain in the language of breath, so just experiencing the breath, being in this moment of the breath, I think this is being. Very good, Amitji. Good explanation and very good, Kavan, what you explained before. But being as ये actually मैं बताऊं अगर अमित जी ने क्या कहा है, that is being in the present. Being present is the distinction of what you have said right now, and that is perfect. Being present means you are in the present moment, and you are actually, you can use your breath to be in that present moment. So being present, उसका सही definition अमित जी ने बता दिया. पर being, actual being का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेंगे? इसी में से ये being present है, तो being क्या हुआ? Except Kavan. No, being something is different. I'm asking what is being. Okay, I think I've confused all the people enough, right? So I'll give you the answer. जब हम बोलते हैं ना मैं हूं, being का मतलब ये है मैं हूं. अब मैं अगर खुश हूं या joyful हूं तो I have a joyful being. और अगर मैं miserable हूं तो मैं miserable being में हूं. लेकिन मैं हूं ये being है. So there is no time that you're not being. Every time you are being. Being is a function of your soul. So you have to understand, being मतलब soul का understanding है ये. Soul के level की बात कर रहे हैं. So soul will always be, you will always be, existence. Being means existence. Yeah? तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है ना. मैं हूँ, हमेशा हूँ. जब तक सांस चल रही है तब तक मैं हूँ. This is your being. अब मैं खुश हूँ. Like, is it like being in the consciousness, being aware that we are consciousness? Just being. मैं हूँ. मैं जिंदा हूँ. चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैं जिंदा हूँ. मैं हूँ. अब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीइंग खत्म हो जाएगी फिर. That being has shifted to some other form. इस लाइफ फॉर्म में जब तक मैं हूँ, I am a living being, a human being. Now clear? So being is a part of the soul. मैं हूँ. I hope I'm connecting now. Correct? अब अगर मैं खुश हूँ तो I am in the joyful being. अगर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ तो I am in the miserable being. And for most of us, many people, or rather most of the people, there is no choice here. By default, they are always miserable. कहते लाइफ तो ऐसी होती है. लाइफ में तो रोना धोना रखा है. नानक दुखिया सब संसार को कोट भी कर देते हैं. हाँ, तो संसार मीन्स दुख. संसार में दुखी दुख है. तो मिजरेबल बीइंग तो ऑटोमेटिक है. Sorry, you have got the definitions all wrong.
You have a choice and you chose to be miserable. But yes, being का मतलब है मैं हूँ. No questions about it. And you are always there. As a soul, you are always there, you are always there, and you will always be there. So existence हमेशा है. That is why this is a universal law. Now, if you're talking of law of being, you have to understand that being में आपको आपके क्या है ये आपको distinguish जब हो जाएगा, then you will be able to shift from a miserable being to the joyful being. So before I say anything else, how many of you are connecting with me? How many of you are connecting with me? If you have any doubts, please ask. ये basic question है, ठीक है, मतलब basic understanding है. जैसे कि एक ग्लास के अंदर पानी है, तो पानी इज बीइंग, वो है, उसमें अगर हम व्हाइट कलर डालेंगे डिवाइन या ब्लैक कलर डालेंगे डेविल का, वॉट एवर इट इज, बीइंग इज देयर, पानी इज देयर. करेक्ट ना सर? Correct. Absolutely correct. Connect that way. Only thing is you have to understand you cannot exist only as a being. You will either be a divine being or a devil being, which means you are either joyful or miserable. You cannot say I am only being. नहीं, वो नहीं हो सकता. वो फिर आप वो ब्रह्मन की स्टेट है, वो सिर्फ सोल लेवल पे होगा. इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स में अगर आप आ गए हो और अगर आप जिंदा हो और इस शरीर में हो, तो आपके बीइंग में कुछ ना कुछ तो है. पता लगाना है क्या है. Okay? Now you can't say I am simply being. Simply being ठीक है, but still you are being something. You're still being someone. So find out what is that. And there are only two options. Broadly, वैसे तो infinite options हैं, मतलब 800 crore will have 800 different kind of beings. But primarily we can say that it is into two broad categories of being. One is a joyful being, one is a miserable being. How many of you can digest this much? Then we are ready to move ahead. Clear है ये? तो अब being clear है. अगर कोई पूछे being को क्या है, मैं हूँ, that is being. Now in my being I can be joyful or miserable. That is my choice. अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी ये एक मान के चलिए कि ये choice है. But by default we are operating from an auto mode, which is a miserable being. और उस miserable being से निकल के ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक joyful being में पहुंच सकते हैं. और अगर चक्रास के कैटेगरी में अगर मैं बताऊं आपको, तो लोअर चक्रास में मिजरेबल बीइंग हैं और हायर चक्रास में जैसे जैसे आप मूव करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस में, देन यू विल मूव इनटू द जॉयफुल बीइंग. सो ऑल द हीलर्स, इफ यू आर कनेक्टिंग विद दैट, you should be ready with that answer. So Kavan, I'm making a bit more clear. जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर उठेगा लोअर चक्रास में से हायर चक्रास में, so रूट चक्रा में मिजरेबल, सैक्रल चक्रा मिजरेबल. गेट दैट? कॉन्शियसनेस की बात करो, एक्शंस की बात नहीं करा. व्हेन योर कॉन्शियसनेस लेवल इज इन द लोअर चक्रास, यहाँ पे ईगो डोमिनेंट है, तो आप मिजरेबल कंडीशन में आएंगे, बिकॉज ईगो इज रनिंग योर लाइफ. एज यू मूव अहेड इन द हायर चक्रास, you will start your journey from being miserable to joyful, and that is the spiritual journey we are talking of, and that is where the transformation happens of the being from devil to the divine. Yes, now before I say anything else, because I can keep on saying in my flow, let us have some sharings from people who would like to share. क्या समझ में आया? इतना ही शेयर कर लें तो काफी है. Shashi, you missed out in the beginning. Renuji wanted to say something, so Renuji was raising hand and you missed it out. Okay, sorry. So I was, as I said, in my flow. So Renuji, please go ahead. And thank you Sanjeev for keeping a. Renuji is at the moment not listening. So Renuji ने हाथ उठाया तो हमने miss करा था. So Renuji wanted to share or tell something. Yes, Renuji, go ahead. बहुत प्रॉब्लम होती है सर. क्या प्रॉब्लम हो गई? Noise problem. Noise problem. Okay, fine. She will come back. We'll. Yeah, you ready, Renuji? If you're ready, you can share. आप कुछ कहना चाह रहे थे? पता नहीं सर, आपने क्या पूछा सुना ही नहीं दिया. मैं ये सुनने ही नहीं दे रहे थे कुछ भी. क्या पूछा आप मुझे एक बार और बताइए. मैंने जो कहा वो आपने सुन लिया. आपको कुछ कहना, शेयर करना है या सवाल पूछना है? आप बता रहे थे सर, वो मैंने सुना कि वो लोअर 3 चक्रा में अगर आपकी कॉन्शियसनेस है तो मिजरेबल है आपके बीइंग, और अगर आप जैसे जैसे हायर चक्रा में आप मूव करते हैं तो वैसे वैसे आप जॉयफुल बीइंग की तरफ चलते हैं. गुड. तो यहीं तक मैंने बोला था. कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप या कुछ पूछना चाह रहे हैं?
सर मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे सब कुछ पता होते हुए भी जब कई बार सिचुएशन आती है तो फिर ज्ञान काम क्यों नहीं आता है? Good, very good question. This is the practical aspect of it, which we are dealing in a very, very strong way in the Friday session. So be in that inquiry, and slowly we will have that answer, correct? And that is why we are all here, right? How many of you want to know that? How to, उनका बेसिक सवाल ये है, how to transform. ज्ञान पूरा है लेकिन ट्रांसफॉर्म कैसे करें मिजरेबल से जॉयफुल में? तो ये एक जर्नी है. सबसे पहले तो ये एक जर्नी है, ये एक झटके से आपको आंसर नहीं मिलेगा. तो एक साधना है, एक जर्नी है, और उस पे कैसे हमको आगे बढ़ना है ठोकर खाए बिना या ठोकर लगने के बाद भी गिरे बिना, वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्राइडे सेशन में, राइट? बट टू गिव यू some reply, I will come to that. Amit ji, एक second. To give you some reply, what we will now do is we will have a discussion on the two different shades of the being that we are talking of in the broad two categories. तो मिजरेबल बीइंग में क्या क्या होगा या क्या कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जॉयफुल बीइंग में क्या डिफरेंसेस होंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी मूवमेंट हो रही है या नहीं. तो एक तरीके से स्वाध्याय से पता लगेगा, लेकिन किस तरीके का स्वाध्याय होना चाहिए उसकी थ्योरी हम अभी देखेंगे. And then we will look into the practical aspects, right, Renu ji? So be in that inquiry and you will get that answer. Yes, Amit ji, आप कुछ कह रहे थे? So to answer to what Renu ji was asking, कि जब रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है तो वो अप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ना उस समय पे वो रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं जो उस समय पे लॉ अप्लाई करेगा. चाहे वो लॉ ऑफ कर्मा हो, चाहे वो कई सारे लॉज है, yin न्याय है. तो उसके लिए जो एक चीज़ जो मेरे को 1.5-2 साल में जो मेरे को डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल इफेक्ट किया है, जो काफ़ी लोग जानते भी है, संजीव जी भी, शशि जी भी, और पार्थ ने भी आज मेरा यूनियन देखा है. सो वो हम अपने आप को अगर सराउंड कर लें इस तरह की चीज़ों से, जैसे कि स्पिरिचुअल सिंबल्स हो गए या पिक्चर्स हो गई जो हमारे डीपी हो गए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, या हमारे पासवर्ड्स हो गए, 3 चीज़ें जो हमारे आसपास जितने भी, अगर डेस्कटॉप्स, टेबल टॉप्स, कैलेंडर्स जो हम दीवारों पे टांगते हैं, अगर उसमें इस तरह के रिमाइंडर, जैसे हम स्कूल में जाते थे पहले, बहुत अब तो नहीं होता है, स्कूल में लिखा होता था सरकारी स्कूल में कि सत्य ही धर्म है, या कई सारे मॉरल एक 1 लाइनर लिखे होते थे, वो आज गायब हो गया आज की दुनिया में. व्हेन वी आर इन अ नीड, व्हेन वी नीड टू अप्लाई सच अ थिंग, तो उसमें वो रिमाइंडर बहुत ज़्यादा काम आते हैं. तो आज की तारीख में वो 3 चीज़ें हैं कि एनी डेस्कटॉप्स और डेकोरेटिव मटेरियल अराउंड अस, नंबर 2 पासवर्ड्स, नंबर 3 डिस्प्ले पिक्चर्स. हमारे कम से कम 3-4 सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इवन जूम पे भी एक फोटोग्राफ होती है. तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए उस जोन में, उस फेज में बहुत ज़रूरी है. जैसे किसी के लिए होता है कि लॉ ऑफ कर्मा या व्हाटएवर, इट इज़ एंडलेस लिस्ट. तो दिस वर्क्स एज रिमाइंडर एंड दिस हेल्प्स यू टू अप्लाई दोस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Absolutely perfect, Amit ji. बहुत बढ़िया sharing, and that is definitely one area which where Amit ji has a full mastery, because his whole union or the spiritual center is full of displays, and he believes in he's a very strong visual display man, right? So he does that. So that's very good. But that will come in the doing domain. तो एक स्टेप आगे निकल गए आप, मेरे को एक स्टेप पीछे लाना पड़ेगा. स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हमको डिस्टिंग्विश करना है मिजरेबल बीइंग में और जॉयफुल बीइंग में फर्क क्या है. So let's have some discussion on that. Then we know how to shift from miserable being to the joyful being. And one of that action is definitely what Amit ji just shared. So everybody clear on this, right? वो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो yes, let's have some discussion. Joyful being और miserable being में क्या लगता है आपको, फर्क क्या है? अपने लाइफ से देखिए, जब आप miserable being में हैं तो क्या चल रहा है, और जब आप joyful being में हैं तो क्या चल रहा है. And then see from your life and then bring it forward. Yes, Parth, you want to share something? Yeah. आई गेस जो सबसे फर्स्ट डिस्टिंक्शन होती है मेरे लिए, वो मैं कह सकता हूँ कि मिजरेबल बीइंग में रहते हुए एक विक्टिमहुड वाली फीलिंग आती है. ठीक है, चाहे खुद के वजह से हो, इनर सराउंडिंग्स की वजह से हो, या फिर आउटर एनवायरनमेंट की वजह से हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट एक फीलिंग उसकी वजह से आती है दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट, या यू आर गेटिंग डाउन. और जब आप जॉयफुल बीइंग में होते हैं तब वो एकदम हट जाता है और आपको लगता है कि यार बढ़िया है, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, ऑल दैट, ये वाली फीलिंग होती है. तो ये एक डिस्टिंक्शन है. Okay. So what Parth has just shared, if I want to summarize it, I would say miserable being में you are
getting a feeling either from an outside world or from yourself that you are not good enough, you're not maybe powerful enough, maybe you are not whatever. तो एक not good enough वाली feeling आ रही है, या not what you can say not worthy enough की feeling आ रही है, कुछ भी हो सकता है इसमें, right? For path whatever he has shared is there, but for in general if I say miserable being में जो what you are left with is I'm not good enough, I'm not powerful enough, right? Or rather if it would be a very affirmative negative statement, which means I am weak, I am helpless, I am worthless. इस तरीके की कोई एक फीलिंग या स्टेटमेंट आपको डोमिनेट कर रही है, राइट? So how many of you can get that? So this is the beginning of the miserable state in which you get into. और फिर उसके बाद एक विशियस लूप में फंस जाते हैं. एक बिलीफ, वो थॉट से आपके एक्सपीरियंसेस बनते हैं, एक्सपीरियंसेस से दोबारा वही थॉट रीइंफोर्स हो जाता है एंड यू गेट इनटू अ विशियस लूप, और वो आपका लाइफ चलाना शुरू कर देता है. It becomes a very deep rooted statement or a belief that you have. Now it could be something which people have said and you have accepted it. It could be something your parents have said as a child and then you are still living that, right? So all these things are possible. So how many of you can connect that? Very strong. So this is how your weak miserable being can be formed. Clear? Right. तो बचपन से अब तक देखिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपने सुना हुआ है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ. कभी टीचर बोलते हैं, कभी बड़े बोलते हैं यू आर स्टूपिड, एंड देन लेटर ऑन यू आर 10 बार सुनते हो, 11वीं बार आप बोलते हो यस आई एम स्टूपिड, एंड दैट गोस इनटू योर बीइंग एंड दैट एड्स टू योर मिजरी. नाउ योर मिजरेबल लाइफ स्टार्ट्स. और उस पिक्चर का नाम मिजरेबल लाइफ की पिक्चर है, एक आपने शुरू कर दी है, और पहले उस पिक्चर में पहला सीक्वल है, जो पहली मूवी बनी है आपकी, वो कौन सी बनी? आई एम वीक, राइट? आई एम अनलव्ड, nobody loves me, I am weak, I am helpless. और इसके टाइटल बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे बनते हैं? देवदास. देवदास बन सकता है. और क्या बन सकते हैं? सोचिए आप क्या क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, किस तरीके से आपने अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूंगा, वेरी गुड, एंड देन यू वांट ए जॉयफुल लाइफ. कैसे होगी जॉयफुल लाइफ? यू आर कंप्लीटली रूटेड इन मिजरी. Get my point? Yes. So let's have somebody else share now. तो miserable being और joyful being में क्या difference और दिख रहा है? अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए बोलिए. इन दोनों में कभी डाउट नहीं होगा. You will never have a doubt मैं अभी joyful हूँ या miserable हूँ. You know instantly. क्या मैं miserable हूँ या मैं joyful हूँ. How many of you have confusion कि मैं joyful हूँ या miserable हूँ? 1 सेकंड का काम है वैसे ये. Just have to ask yourself, am I feeling good? Yes or no, आ जाएगा आंसर. मुश्किल होती है कभी ये देखने में मैं जॉयफुल हूं या नहीं, पूछना पड़ता है. Am I happy? पूछना पड़ता है. No. So can I? Yes. Go ahead. Sir, when we'll be in the joyful state, body, mind, heart और universe के बीच में एक type का alignment, we can feel that, sir. There will be alignment between these things. Mind, body, heart और universe के बीच में, sir. जब हम misery state में रहते हैं तो completely disalignment रहता है. Means mind कुछ बोलता रहता है, body उसको सुनता नहीं, heart कुछ बोलता है. So this we can notice, sir. Misery state में. तो इसको अगर सिंपल तरीके से बोलें, presence of conflict in your life. Conflicts बोलेंगे इसे. Conflict could be mental thought, one thought cutting the other thought, one emotion cutting the other emotion. तो mental and emotional turmoil अगर चल रहा है, conflicts चल रहे हैं, तो that is a sign of a miserable state, right? Am I right? That's what you're trying to say? Yes, sir. Yeah, good. That's fine. तो आपकी लाइफ से अगर ये निकल के आ रहा है, that is okay. So emotional turmoil चल रहा है. How many of you can connect with it? Emotional turmoil चल रहा है. हाँ, उसको अभी मारना है या कल मारना है. एक तो गुस्से वाला वो आ रहा है, फिर कोई दूसरा थॉट आता है, नहीं, वायलेंस इज बैड. तीसरा थॉट आ रहा है, नहीं, बट ही डिजर्व्स इट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड थॉट कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन. करना है, नहीं करना है. कोई एक थॉट आता है, करना है, मारना है उसे, नहीं अभी नहीं मारना, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग. तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट मींस इट इज अ मिजरेबल स्टेट. ऑब्वियसली इट इज अ मिजरेबल स्टेट. यू हैव लॉस्ट योर पीस. और आज ही मैंने पोस्ट किया था, इफ यू लूज योर पीस देन nothing in this universe is worth that loss of peace. So you should not lose your peace. Whatever happens, be peaceful first. Anything that costs you your peace is very costly. Yes.
Okay, good come and path. Yes, anybody else who wants to share from your life, see into your life and share from there, and let's have some more distinctions. What is joyful state and what is a miserable state of being? हाँ जी. और अभी एक्शंस में नहीं जा रहे हैं, अभी डूइंग में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ स्वाध्याय से एनालाइज कर रहे हैं कि जब मैं मिजरेबल बीइंग में हूं तो मेरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, और जब मैं जॉयफुल बीइंग में हूं तो मेरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ. दैट वे कॉन्फ्लिक्ट्स. पार्थ के केस में नॉट गुड इनफ, कवन के केस में जो आया कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ who else would like to share? Yeah, yes रेणु जी. सर जब आप जॉयफुल स्टेट में होते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी काम को करने में, या आप अपना 100% दे पाते हो, और नहीं तो वो उलझन की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, या जो भी मेंटल जो टर्मोइल आप करें उस तरीके से, मतलब उतना नहीं आप कर पाते हैं. भारी भारी रहना, मन भी भारी रहेगा. जब आप जॉयफुल होते हो तो टाइम भी इजीली निकल रहा होता है, गिटार बज रहे होते हैं ऐसे पीछे, उस स्टेट में आप होते हो. तो ये होता है सर. जैसे मैं अभी यही आपसे जो ज्ञान की पूछी वो यही हुआ कि जब आप डे टू डे में जैसे आप अपना 100% दे रहे होते हो और सामने वाला एकदम आपके किए हुए को 0 कर दे, आप उससे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो तब तो ऐसा ही हो जाता है फिर मिजरेबल. उसमें फिर वो ज्ञान काम नहीं आता है. फिर एक दिन खराब करने के बाद दूसरे दिन जब आप सुबह सदगुरु सुनते हो और शिवानी सुनते हो तो आपको लगता है यार बिना बात एक दिन खराब कर दिया, फिर से आप जॉयफुल स्टेट में आते हो. तो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है सर. गुड, एंड दैट इज लाइफ. तो अप एंड डाउन अगर होगा दैट मींस यू आर अलाइव. सो दैट इज लाइफ. करेक्ट. हार्ट बीट की तरह सर. फ्लैट हो गया तब तो बड़ा मुश्किल है, बट इन बीइंग स्टेट में फ्लैट होना इज गुड एक्चुअली. बीइंग स्टेट में अगर आप कंप्लीटली जॉयफुल में रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, दैट इज अलाउड. डूइंग डोमेन में हमको एक जैसा नहीं होना है. सो देयर हैज टू बी ए स्मॉल डिस्टिंक्शन देयर, राइट. बीइंग लेवल पे यू कैन ऑलवेज बी जॉयफुल and you can live a absolutely blissful life. Yes, but दो चीजें रेणु जी ने यहाँ बहुत अच्छी बोली. नंबर 1 कि बीइंग में, सेकंड बात जो आपने बोली वो मेरे को पहले ध्यान आ रहा है, इसलिए पहले बोलते. एक्सपेक्टेशंस. जब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, आपको क्या लगता है, आप जॉयफुल स्टेट में होंगे, रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आएगा, अगर एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई है तो जो भी रिजल्ट आएगा मिजरेबल स्टेट में. तो मिजरेबल स्टेट में जाने के लिए एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी और एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो होगा आपका, तो रिजल्ट के हिसाब से आप मिजरेबल हो जाएंगे. और अगर आपको जॉयफुल स्टेट में रहना है, क्या करना है, एक्सपेक्टेशंस को कम कर लो, एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ा लो, तो आप जॉयफुल स्टेट के काफी ज्यादातर टाइम आप जॉयफुल स्टेट में रहने के हकदार बन जाते हो. तो यू विल हैव ए वेरी सिंपल फॉर्मूला. एक्सपेक्टेशंस हाई है, यू आर बाउंड टू बी मिजरेबल. Acceptance high है, there are chances of you being joyful. Let me put it that. So this is one big distinction जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, और काफी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारे स्वाध्याय भी किया. This was something which made a huge difference in my life. Nowadays, if you ask me, my expectation level from most of the people, I won't say all the people, most of the people, अभी कुछ लोगों से अभी भी थोड़ी बहुत expectations बाकी है, right? And obviously they are the ones who can hurt you. And this was this came to me like a big revelation to me, कि जिनसे मेरी expectations हाई है वही मुझे hurt कर सकते हैं, जिनके साथ expectation है ही नहीं वो मुझे hurt कर ही नहीं सकते. And this was a huge thing for me. And that helped me actually to bring down my expectation level from people, especially for those जिनके साथ मेरी कोई commitment नहीं है, जिनके साथ जिनको मेरे साथ कोई कमिटमेंट नहीं है. सो व्हाई विल दे यू नो हैव ए कमिटमेंट कि वो मेरे को हर्ट नहीं करेंगे. सो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम इज ओनली गोइंग टू मेक मी मिजरेबल, एंड दैट हेल्प मी टू ब्रिंग माय एक्सपेक्टेशंस लेवल डाउन वेरी फास्ट, राइट. सो गोल्डन रूल क्या है, एक्सपेक्टेशंस लो कर दो, एक्सेप्टेंस लेवल हाई कर दो. औरों को आपको जैसा है एक्सेप्ट करना है. मैं क्या पिछली बार भी मैंने बताया था शायद. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड यू, एक्सेप्ट देम द वे दे आर, एंड डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. यू आर कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ. तो अपना स्वाध्याय करो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो एंड इंप्रूव योरसेल्फ, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट पीपल मोर. दैट इज द golden rule which worked for me. So I'm just sharing that from my life.
right? So this was a huge thing for me, which transformed my miserable being to the joyful being. मैंने अपनी expectations level को बहुत कम कर दिया और acceptance level को high कर दिया. और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, जब आप बोलें तो ऐसे नहीं बोले कि जब आप करेंगे, जब बोलो मैं, when you put it personal life में लाके मैं से बोलोगे, that will become more real for you. तो रेणु जी आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें आपकी जगह पे आप मैं बोल के बोलेंगे तो आपके लिए भी और अच्छा होगा, right? So sharing has to be always personal. It will give you more impact. Yes, good. So how many of you could connect with what I said? Yeah, good. Keep noting that, because that will move you into the joyful state very fast. Yes, somebody else who would like to share? Gaurav ji and Dharamveer Singh जी, आप भी शायद सर मैं correct नहीं कर पा रहा हूँ. So if you can switch on your video and introduce yourself by a couple of lines, I'll be able to connect with you. Oh, Dharamveer ji, my VIT friend. Okay, great, wonderful, great to see you, Dharamveer ji. So be in the group, and आपने शायद पीछे recordings देखी होंगी. So जब भी आपको share करना चाहें. एक्चुअली मैं अभी थोड़ा लेट हो गया, बाकी मैं आपको सुनता रहता हूँ, रोज देखता रहता हूँ और काफी मतलब शांति मिलती है. और जो आपने आज एक्सेप्टेंस वाली बात कही है, वो मेरे अंदर मतलब मैंने जब से आपसे जुड़ा हूँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मतलब प्रैक्टिकल होता जा रहा हूँ आपसे मिलके. ये बहुत अच्छी बात हो रही है. Great, he is the great DB boss of our BID. So welcome DB boss. I like that. Thank you. Great. So yes, who would like to share? Anybody else who would like to share? एक सेकेंड दीजिए मुझे. Okay, so who would like to share more? So today what we are actually looking at is how to move from the miserable being and move to the joyful being, and to understand that this is a choice. So that is the agenda. Everybody clear on the agenda, right? So keep that agenda in mind when we are sharing. तो सबसे पहले आपको अपने miserable being और joyful being को distinguish करना है, and then we will see how we have to move from the miserable being to the joyful being. That we will see, right? Let's have some more people share. Anybody? Sanjeev, feel free to share whenever you are, when you feel that you can make some, massive contribution. So I leave it to you. I'm enjoying what everybody is sharing, so let it be. Yeah. So whenever you feel comfortable, you can, or whenever you feel necessary, pitch in. Yeah. Anybody else who would like to share? Gaurav ji, anything आप कुछ share करना चाहेंगे? Not exactly sharing, but I have few things to clarify. Yeah, please go ahead. So when we are saying that we feel like that we are in a miserable state, and the joyful state is when you are happy, right? But sometimes I feel in both the situation you are not peaceful, whether you are miserable or you are happy. Okay, so tell me a situation. Right. Tell me a situation if you can. Like because both the things are materialistic, right? Happiness, I won't say is materialistic. Pleasure can be materialistic. Happiness is not exactly materialistic. So I need some more clarity about what you're saying. So, how do I say? Because in most of the cases, either we are in a miserable state or we are in joyful state, but that peaceful state is missing, which actually we should have. So you consider the two states as miserable and peaceful. Forget happiness. Okay, miserable and आपके लिए joyful state peaceful है. जब तक peace नहीं आएगा, तब तक आपको joyful या divine state में नहीं जाएंगे आप. Exactly. So take peace. Joyful की जगह पे आप peaceful ले लो. So either you are miserable or you are peaceful. Now tell me. So okay, something happened, in recent times, that I was going through your sessions, and the very first session, I think a couple of weeks back, to being humble. So I tried to apply that, and what happens is basically, at one situation I was very angry, with some incident, very angry, like if I have been reacted at that time, maybe that will impact me, and I was not being humble. But when I try to being humble,
that actually impacts me internally. You know, it goes into my nerves that I'm like, Okay. वो खून खोलने वाली चीज होती है, but you're not doing anything. You're peaceful. So मतलब I got a headache and you know I got everything that. BP. So गौरव जी मैं आपको दो चीजें बोलूंगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो छोटा सा एक मैं डिस्टिंक्शन बता देता हूँ आपको कि जब गुस्सा आए तो ना उसको दबाना है, ओके। दबाने से तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, जैसे आपने कहा हेडेक हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, राइट। और उसको वॉमिट भी नहीं करना है। वॉमिट करने का मतलब है सामने वाले के ऊपर उल्टी कर दिया आपने, तो सारी सिचुएशन खराब हो जाएगी, राइट। तो यू कांट वॉमिट एंड यू कांट डाइजेस्ट इट बिकॉज इट इज लाइक पॉइजन, है ना। तो आपको उसको डिस्टिंग्विश करना होगा। इसको हम बोलते हैं, जिसको आमतौर पर मैं बोलूंगा, इफ आई रिलेट विद द टॉपिक ऑल्सो, जब आप मिजरेबल स्टेट में होंगे तो आप रिएक्ट करेंगे, और जब आप जॉयफुल स्टेट में होंगे या पीसफुल स्टेट में होंगे तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो रिएक्शन इज एन ऑटोमेटिक मोड ऑफ, यू नो, ऑटोमेटिक मोड में जाता है वो, ऑटो मोड में। जैसे वो ना मशीन दबाई, बटन दबाया, मशीन चालू, दैट इज इट। ये रिएक्टिव मोड है। रिस्पॉन्स मोड होता है, ओके ये हो गया, आप यू टेक वन स्टेप बैक, यू सी द सिचुएशन, आपने बीच में 5-6 ब्रेथ लिए, एंड देन यू कैन एक्चुअली लुक एट वेदर यू वांट टू, हाउ यू वांट टू रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्स में थोड़ा सा टाइम होता है, रिएक्शन में कोई टाइम नहीं होता है। तो जब आप एंगर में रिस्पॉन्स करते हो तो एंगर में आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, एंगर में आप रिएक्ट कर रहे हो, ओके। तो अक्सर हम बोलते हैं गुस्से में आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, टेक ए यू नो 5 सेकेंड्स ब्रेक, या 3 बार सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, तो एंगर थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। नाउ यू कैन थिंक प्रॉपर्ली, क्योंकि गुस्से में आप सोच नहीं पा रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आप सोच नहीं पाओगे, डिसीजन सही नहीं होगा। इमोशनली जब चार्ज अप होते हो तो डिसीजन हमेशा गलत ही होगा। So you have to be emotionally intelligent to take a decision, right? तो फुल गुस्सा आ रहा है तो वहां पे हम्बलनेस नहीं चलेगी। फर्स्ट यू हैव टू स्टेप बैक, डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ। पहले एक्सेप्ट करो सिचुएशन को कि ये ऐसा कर रहा है। नाउ गुस्सा क्यों आ रहा है? somebody outside is not behaving the way you want, very simple। या वो ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको लगता है नहीं करना चाहिए, या वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो आपको लगता है करना चाहिए। तो अदर पर्सन इज बिहेविंग में डूइंग या नॉट डूइंग, जो भी आ जाएगा। नाउ करेक्ट मी एंड कनेक्ट विद दैट सिचुएशन इन योर लाइफ। समवन एल्स आउटसाइड यू इज डूइंग समथिंग और बिहेविंग इन अ मैनर which is not right as per you, that is anger। करेक्ट? That's right। वो आपके लिए अगर ठीक नहीं है ना, उसके लिए तो वो ठीक है। हाँ, right, absolutely fine, right। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट हिम, ओके दिस इज द वे ही इज। तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल लो है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। See, if a 5-year-old or a 10-year-old is jumping around and making a lot of noise, that is their normal way of joyful state, right? And you are getting upset and angry and headache and everything because you are not accepting it। आप उसे accept कर लो, 5 साल का बच्चा यही करेगा, और क्या करेगा वो? that is a very small, so I'm just trying to tell you whatever you are experiencing is similar only, but आप experience कर रहे हो इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। sometimes intentionally doing it, then you know you have to, actually the thing happened was that I did not react, but I think the next level I should learn, you know, how to respond, but I did not respond also। तो अभी डिस्टिंक्शन पकड़ लो, सिर्फ रिएक्ट किया या रिस्पॉन्ड किया तो पता लगेगा। रिएक्ट किया तो मिजरेबल है, रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो जॉयफुल होने के चांसेस हैं। बाकी हम डिस्कस कर सकते हैं इसको इन डिटेल में भी, यू नो, इफ यू व्हेन यू कम टू द फ्राइडे सेशन वी कैन पॉसिबली डिस्कस इट इन फर्दर डिटेल, एंड संजीव विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर, राइट संजीव? Okay, do we have a different group for the Friday session? Because I do not फ्राइडे have थोड़ा that। प्रैक्टिकल ग्रुप है, संजीव का ग्रुप है बेसिकली, 9 to 10 का ग्रुप है। All right। so we deal with the same topic because he deals with the more practical aspects of it। मैं ज्ञान थोड़ा ज्यादा देता हूँ, राइट? तो तो यहाँ पे थ्योरी हम कवर कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेशन वहाँ पे होता है। तो यू लुक इनटू योर लाइफ, इंक्वायर, एंड व्हाटएवर यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व, अगर आप रिजॉल्व कर लेते हो स्वाध्याय से तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं हो रहा रिजॉल्व, कम देयर एंड बाउंस ऑफ दैट सिचुएशन, and we deal with the life situation, and he is an expert, so Okay। when there is an expert around, why should I waste my energies on something, you know? यहाँ पे expertise है, वो handle करेगा ना। तो Friday session इसके लिए रखा है, right? So Gaurav, if you got the distinction, just work on it, be very clear what exactly is giving you that miserable state। अभी पहले identify करना जरूरी होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, देन देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, बिकॉज प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन रहता है। Only thing is, like I say,
सॉल्यूशन उसके हायर लेवल पे मिलेगा। और अगर चक्रास के लेवल पे बात करूं, अगर आपने प्रॉब्लम सोलर चक्रा में क्रिएट किया है तो उसका सॉल्यूशन हार्ट चक्रा में मिलेगा, सोलर चक्रा में उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई आई से कीप हीलिंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप रूट चक्रा की प्रॉब्लम को लेके बैठे हो, रूट चक्रा इज अर्थ एलिमेंट, राइट? तो अर्थ एलिमेंट की अगर प्रॉब्लम लेके बैठे हो, उसका सॉल्यूशन आपको वाटर एलिमेंट में मिलेगा। जब आप सेकल चक्रा पे जाओगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन वहां पे फिर नई प्रॉब्लम शुरू होगी। उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक और हायर चक्रा पे जाना पड़ेगा। दैट इज हाउ द लाइफ मूव्स ऑन, राइट? So you have to understand every problem has a solution, but that solution will come at a higher level than the level where you actually created that problem. So you have to evolve. There is no choice. Evolution के लिए कोई choice नहीं है. You are evolving, and evolving is a natural process of life. Life is a process of evolution only. Correct? लेकिन हमको उसको इवॉल्व करने के लिए हमको समझना है कि इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। एंड प्रोसेस यही है, मिजरेबल स्टेट को समझो, डिस्टिंग्विश करो, मूव ऑन करो एंड बिकम मूव अहेड इनटू द जॉयफुल स्टेट। तो क्लियर हो गया? रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड बीइंग रिस्पांसिबल इन लाइफ। सो लेट मी गिव यू सम मोर ज्ञान ऑन दिस। रिस्पांसिबिलिटी हम सबने सुना है। व्हाट इज रिस्पांसिबिलिटी? हु वांट्स टू गिव अ डेफिनेशन फॉर रिस्पांसिबिलिटी? I have a great definition which changed my life. हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन के? Anybody? Just shout out. What is responsibility for you? सर मुझे तो संजीव सर वाला याद आता है कि आप माई बाप हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay. So, but I want something linked with the word itself. Responsibility से ही responsibility को समझो तो आसानी होगी। Whenever you talk of responsibility, you will understand what is responsibility. Anybody? Parth, go ahead. Like ability to respond in a specific way according to the situation. You can हो गया Parth. That is a wonderful answer. That is what I'm looking at. That is sufficient. Good. Very good. Responsibility is actually responsibility. Responsibility means ability to choose a response. That is what is responsibility. But हिंदी में तो उसको जैसे जिम्मेदारी बोलते हैं, राइट? हाँ, वो तो एक्चुअल वर्ड मीनिंग है। मैं वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की मीनिंग की बात कर रहा हूँ। How can you become responsible in life is if you are responsible for the responses that you are making in life. Then you will remember. Whenever you hear this word responsibility, आपको मालूम हो मेरे को response जरा सोच समझ के करना, तो आप रिएक्शन वाले मोड से बाहर आ जाओगे। एंड दिस हैज हेल्प्ड मी टू गेट फ्रॉम माय रिएक्टिव मोड, क्योंकि मिजरेबल स्टेट में रिएक्शन होना ही होना है। अगर आपको जॉयफुल स्टेट में आना है तो आपको ऐसी कुछ डेफिनेशंस बनानी पड़ेंगी अपने लिए। ये कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ये हमने बनाया है, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। इनफैक्ट शिवानी जी सेज द सेम थिंग, सो इफ यू वॉच हर वीडियोस यू से द सेम थिंग। तो आप अपने एबिलिटी जो है रिस्पॉन्स की वो बढ़ा रहे हैं तो आप ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स दे पाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग जॉयफुल इन योर लाइफ। दैट इज हाउ यू कनेक्ट joyful state and your ability to respond is they are connected, very very strongly connected and directly connected. कितने लोगों को कनेक्ट हुआ? अगर आप अपने रिस्पॉन्सेस को चूज कर सकते हैं तो आप जॉयफुल स्टेट में आने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। In this also what Judge Gaurav ji said about Hindi word, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भी अगर आप देखेंगे तो वर्ड जो आया है शब्द, कार्य की जिम्मेदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले आता है आपके बीइंग की जिम्मेदारी। आप क्या हो, तो वहां भी सेम चीज अप्लाई करती है। वहां पे जिम्मेदारी हम काम को समझ लेते हैं, कार्य इज नॉट इम्पोर्टेंट, बीइंग इज इम्पोर्टेंट। जो बीइंग होता है तो कार्य अपने आप हो जाते हैं। ग्रेट, I didn't look at it that way, so that is good. So even हिंदी में भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं बीइंग से, राइट? बट ज्यादातर लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालूम है? बर्डन है। ये कब किसने तोड़ा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो बर्डन आ गया। बचपन से ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बर्डन समझ में आता है, वो गलती हो गई, ब्लेम है। कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम लगता है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मींस यू आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर इट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेगेटिव मीनिंग आ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी पॉजिटिव बाय द वे। इट इज लाइक टेकिंग एन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा और रिफाइंड हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज लाइक, यू नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल यूनिवर्स,
Aham Brahmasmi, like that. That is accountability. Correct? So responsibility is also like that. You are choosing a response and for being joyful in your life. Look at it that way. जब आप responsible हो अपनी life में joyful होने के लिए, then you are actually responsible. And by the way, you are responsible for your miseries also. तो आप खुद अपनी life के जिम्मेदार हो. This is responsibility. कोई और आपकी life का जिम्मेदार नहीं है. भगवान पे, भाग्य पे, पड़ोसी पे, बॉस पे, वाइफ पे मत डालो. आपकी लाइफ मिजरेबल है आपकी वजह से. Right? Look at who are the villains in your life. They are not responsible for your misery. If you are being miserable, then some or the other villains will come in your life and make you more miserable, because that is what you attracted. अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात करूं. अगर आप, मैं कई बार बोलता हूँ ये, अगर आप खुशखबरी चाहते हो तो आपको हैप्पीनेस मैग्नेट बनना पड़ेगा. एंड दिस इज कॉल्ड द जॉयफुल बीइंग. जॉयफुल बीइंग में रहोगे, यू विल अट्रैक्ट जॉय इन योर लाइफ. मिजरेबल बीइंग में रहोगे, यू विल अट्रैक्ट मिजरीज इन योर लाइफ. Suffering and miseries. How many of you want suffering and miseries in life? How many of you want suffering and miseries in life? Nobody. Good. So no way you can afford to be miserable, because the moment you are miserable, you are becoming a miserable magnet. Magnet for attracting miseries in your life. So you have actually no choice. अगर आप बोलो choice है, तो by default लोग miserable being में रह रहे हैं और life में suffering and misery attract कर रहे हैं. Now, by conscious choice, you have to be joyful in your being, and you will attract joy and happiness in your life, and peace. If peace means joy to you, so you will attract peace. You have to, life has to always flow from the being level. Being level पे अगर आप joyful हो, happy हो, peaceful हो, then whatever you do, it will be inconsistent with the being, and the having or the experience will be full of joy, peace, and happiness. That is what is the right understanding of this law of existence or being. Right? Yes. So anybody who wants to share, या कुछ और बताना चाहेंगे? Distinction, joyful being, miserable being. कौन बताना चाहेंगे? So if you're feeling helpless, if you're feeling angry, if you're feeling upset, all these are shades of miserable being. और यही ज्यादातर लाइफ में आते हैं, right? I am a failure. Yeah, go ahead. That is also part of misery, I guess. Which one? Confusion. Confusion, yes. Confusion is a big part. Confusion is avoiding responsibility. I said that in the last session also. When you are confused, you can easily say, I am confused. मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, मुझे पता ही नहीं क्या करना है. You are not taking any responsibility in your life. जिम्मेदारी नहीं लेनी है. Confused हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. बहुत आसान है बोलना. रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना है तो बिकम रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ. क्या समझ में नहीं आ रहा है? हिंदी में बात हो रही है, इंग्लिश में बात हो रही है, समझो. राइट? Get hold of the situation, take a decision. You don't want to take a decision, that's why you are confused. Take a decision, confusion will end. Decide what you want to do. You may make a mistake, but still decide. Decide करोगे, confusion हट जाएगा, clarity तो रहेगी. Clarity चाहिए, you have to decide. If you don't decide, you will be confused. ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास. क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोचा अरे कुछ तो कर. जैसे करोगे क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? बट उसके लिए आपको बीइंग में यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव. दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी रहेगी. जैसे बीइंग प्रेजेंट अमित जी ने कहा, वैसे ही बीइंग क्लियर, हैविंग क्लैरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू विल बी एबल टू मूव अवेड. राइट? तो अभी तक जो हमने सेशन में किया, and time to summarize. How do you move from the level of miserable being to the joyful being? तो distinctions हम देख रहे हैं. Distinctions देखना है, observe करना है, और आपको decide करना है, नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए. That's it. Decide. And that decision will give you the transition from the miserable state to joyful state. Now all of us are clear, miserable being नहीं चाहिए. सबको clear है ना? तो आज से कॉन्शियस हो जाओ. सबसे पहले जब भी मिजरेबल स्टेट की कोई भी एक्शंस आए या कोई भी रिस्पांस ऐसा आने लगे, रुक जाओ. 3 सेकंड लो, 5 सेकंड लो, ब्रेक लो, एक गिलास पानी पियो, 2-3 सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट करो,
you will take one step back and then instead of reacting, take a response, make a clear response. That will be the first step for moving from the miserable state. तो miserable state में गिरोगे नहीं, उसके बाद नॉर्मल होने के बाद जॉयफुल स्टेट में जाने की कोशिश करो. अब टफ सिचुएशंस आएंगी, आई एम नॉट सेइंग टफ सिचुएशंस नहीं आएंगी, लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू थ्रो चैलेंजेस एट यू. नाउ व्हाट डू यू थिंक, टफ सिचुएशन को पैनिकी होके हैंडल करने से ज्यादा अच्छा होगा या पीसफुल होके हैंडल करने से ज्यादा अच्छा होगा? प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी आपकी, पैनिकी होने से, एंग्री होने से या पीसफुल होने से? इतना सोचना पड़ रहा है क्या? नहीं, पीसफुल. सो ऑब्वियसली इसमें कोई चॉइस नहीं है, तो आपको अपने डिफॉल्ट मोड से या रिएक्टिव मोड से या ऑटो मोड से बाहर निकलना है. एंड ऑटो मोड इज ऑल कॉजिंग द मिजरीज इन योर लाइफ. वहां से कैसे बाहर निकलना है? अगेन इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ साधना, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम अवेयर ऑफ इट. आई हैव बीन लिविंग दिस पैटर्न ऑफ बीइंग मिजरेबल इन माय लाइफ. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. पहले अपने पैटर्न को एक बार देखना है, और कई बार सिर्फ देख लेने से ही आपके अवेयरनेस में आ जाएगा एंड यू विल से स्टॉप, नहीं करना मुझे ये मेरी वजह से सारे ड्रामे हो रहे हैं, मैं बंद करूंगा, मैंने शुरू किया था, मैं ही बंद करूंगा इसे, और कोई नहीं कर सकता. बिकॉज यूर सफरिंग एंड मिजरी इज योर गेम. आप ही उस मूवी को चला रहे हो, आपको ही स्टॉप करना पड़ेगा. बाकी सारे तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में. यू आर रनिंग द मूवी ऑफ योर लाइफ. और उसको अपने टाइटल भी बड़े अच्छे अच्छे दिए होंगे. कोई देवदास बन के घूम रहा है, देवदास की मूवी चला के बैठा है, कोई अकेला चला के बैठा है. और क्या क्या है, ट्रेजेडी वाले सब देख लो. आप ये मूवी चला के बैठे हो, so you are become a tragedy king, दिलीप कुमार, करेक्ट? या देवदास बन के बैठे हो. नाउ you have to understand, अगर शाहरुख खान को भी अगर सिमरन चाहिए तो उसे राज बनना पड़ेगा, देवदास बन के नहीं मिलने वाला कुछ, राइट? देवदास की स्टोरी मालूम है ना? देवदास का कैसे एक लाइनर का क्या बोलते थे हम लोग. हाँ, तो अगर आप लाइफ में देवदास हो, ना पारो मिलेगी ना चंद्रमुखी, और आप रहोगे हमेशा दुखी. That is being miserable. So you have to understand, even if everybody loves you, if you're in a miserable state, you will always have a feeling, no, nobody loves me. There are hundreds of people who are ready to love you, but you will not experience that love because you are very clear that no, I don't deserve any love. तो आपके ईगो के फ्लेवर्स जो हैं, ये आपको रोक रहे हैं. आपको मिजरेबल बीइंग में टिके रहने के लिए आप कौन फोर्स कर रहा है, बताओ मेरे को? कोई और नहीं कर रहा है, आपका ईगो कर रहा है. और ये ईगो कौन से हैं? नॉट गुड इनफ, हमने देख लिया, नॉट क्लियर, कंफ्यूज्ड, ये सब ईगो के फ्लेवर्स ही है ना. तो अपने ईगो को पहले पहचानना है. ईगो का कौन सा फ्लेवर है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप उसको बड़े चाव से खाई जा रहे हैं? आइसक्रीम फ्लेवर, हाँ, चॉकलेट है, वेनिला है, आप अलग अलग फ्लेवर्स के ईगो के आइसक्रीम खा रहे हो, एंड देन यू आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ. Just become aware of it first. That would be the first step, right? And then it is a practice, and then it is a spiritual journey. So आपकी साधना है, और इसी को हमको स्वाध्याय करना है, और फिर we have to come back to practice it in our life. And for practice session, again, I remind, make it a point to attend the Friday session. We will have a lot of practical, 2-3 दिन हैं आपके पास, स्वाध्याय करिए, जो लाइफ के इश्यूज हैं वो लेके आइए, एंड वी विल हैंडल दैट इन द ऑन फ्राइडे. यस, सो दैट एंड्स द ज्ञान फ्रॉम माय साइड. संजीव, योर expert comments, and then anybody who else who wants to share. Sashi, that is where you have given again a very clear understanding in the third session about what is the law of being. We all always get lost into doing or having. That's always the life. जो हम बात करते हैं ना कि हमें चाहिए 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 चाहिए, और हम उसमें डूइंग में खो जाते हैं. बट चाहिए और करने से पहला स्टेप जो होता है बीइंग वाला होता है, which you have been telling every time very clearly, and that's what we are understanding. And of course, with this theory what we're talking, we all may want to know specific things. Just think from the level of being only, and that's what I would say. Thank you very much for again reiterating today in a very strong manner. Thank you. Great, wonderful. Thank you, Sanjeev. So before we end the session, we still have a couple of minutes, and today we have ended the session before time. Yes. So anybody who would like to share, we have a couple of minutes.
कौन शेयर करना चाहेंगे? व्हाट आर यू टेकिंग आउट ऑफ दिस सेशन? लेट्स हैव दैट. तो पूजा जी, आपने कुछ नहीं कहा है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? So that we know that you have taken some value out of this. Okay, Pooja ji will take some time. Possibly she is busy somewhere else. Anybody else who would like to share? DV Singh ji, आप अगर हैं कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, it's nice to have my BID friends out here. कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? What are you taking away as a takeaway from this session as a value? Okay, meanwhile they will share. Yes. हाँ जी. एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा, जब से मतलब एक बहुत बड़ा आपकी कृपा हुई हमारे ऊपर, बच्चे के लिए जो आपने हीलिंग किया था वो अभी ठीक है बिल्कुल. और अभी देखो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसने अभी, और बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल 100% बिल्कुल ओके है वो. ये सब कृपा है हमारे ऊपर. Wonderful, wonderful, DB Singh, and that is great because actually healing is done by the divine blessing. So मैं तो सिर्फ चैनल हूँ. I keep saying that, but yes, I'm very happy to know that you have got excellent results from the healing sessions. Great, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Welcome. और सेशन में आइए, एंड आप काफी कुछ आपको भी मिलेगा इसमें, और I know you can share a lot, and being a close friend, it will be good if you come into the sessions, right? So thank you very much. So keep joining. Right, anybody else who would like to share? कौन बात करना चाहेंगे? और Pooja ji, if you are there, you can share. Otherwise, anybody else who would like to share? Kavan, what are you taking back from this session? Everybody needs to share a couple of lines so that we are clear. Yeah. Yeah. Sorry, I couldn't hear that. कौन बोल रहे हैं? Hello. Okay. There was some disturbance, I suppose, so I was actually muting the people. Yes. Anybody who wants to share? हाँ जी, रेणु जी, go ahead. सर, जो मुझे लगा अभी जो इस सेशन से मुझे समझ में आया है वो ये कि जैसे आप रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने का बता रहे हैं, तो जैसे प्रोफेशनल लाइफ में या बाहर फैमिली से अलग कभी रिस्पॉन्ड करना मुझे लगता है कि मतलब करना चाहिए, लेकिन कई बार जब फैमिली में होता है तो जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं या मतलब तब उस टाइम पे एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा होके सिचुएशन हैंडल की जा सकती है. तो मैं जो आजकल फेस कर रही थी वो फैमिली में, मैं इसीलिए आपसे बात कर रही थी, तो वो यही था कि आप कुछ जगह पे नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो वो तो आप बता ही रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई होती है उस टाइम पे, और इसी वजह से एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है. बिल्कुल सही है. तो यू हैव टू सी व्हाट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, क्योंकि आपके लाइफ में सिचुएशन आपकी है, लाइफ के डिसीजन आपके हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ, इट विल कम टू यू. बट अगर आप प्रैक्टिस सही कर रही हैं, लाइक यू नो इन क्रिकेट में हम बोलते हैं, अगर नेट प्रैक्टिस अगर आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो मैच में ऑटोमेटिक शॉट लग जाएगा, सही है ना. पर अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैच में अचानक समथिंग विल कम एंड यू विल नॉट बी एबल टू फेस इट. दैट इज एग्जैक्टली. तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे एक्सेप्टेंस की, प्रैक्टिस करोगे रिस्पॉन्स की इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, देन एक्चुअल लाइफ में भी यू नो यू माइट सिंपली हाथ जोड़ के सिर्फ स्माइल करके आप निकल जाओगे बिना कुछ किए. बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी मेरे को ब्रेक चाहिए. थैंक यू वेरी मच. शशि हियर आई वुड से रेणु जी का एग्जांपल, रेणु जी आपने अपने लाइफ में खुद करा है, वो आपने ऑफिस में कीड़े वाला एग्जांपल सबके संग शेयर करा हुआ है. तो वहां पर जब आपने इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, वो भी कैसे हुआ है? पहले नहीं हो पा रहा था, बाद में हुआ. तो मैं वही बता रहा हूँ ना सर कि जब ये दो वर्ल्ड है ना, एक तो फैमिली हो गया आपका, आपके नियर डियर जिनके साथ में आप उस लेवल पे नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते, बहुत बार नहीं कर पाते, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं जैसे, लेकिन बाहर वाले में मुझे बहुत फर्क पड़ा है. तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ घर में, लेकिन मुझे अभी लगता है कि एक्सेप्टेंस लेवल जो है मेरा अभी कम है. तो बस वही है जैसे शशि जी बोल रहे हैं, जो आपने बाहर वालों के संग करा, स्टेप बाय स्टेप, ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. जिसके आप जितने क्लोज रहते हो ना, वहां उतना ज्यादा टाइम लगता है. जहाँ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है वहां ज्यादा टाइम लगता है. तो वो जो बीच का टाइम होता है ना सर, जब आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहे होते हो,
और आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे होते हो, तो वो टाइम बड़ा, उसमें आपको सच में लगता है कि आपके चक्रास वक्रास में आप कहाँ पे हैं, अभी किस टाइम पे हैं। उस टाइम तो सच में लगता है कि आप नीचे वाले 3 में होते ना, तो आप सही से इसको हैंडल कर पाते। एंड रेणु जी, शशि से परमिशन से सिर्फ वो एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, KFP मोड याद रखना आपने खाली। Right. Okay. So there is something. Some पिछले sessions में से कुछ चला आ रहा है हमारे abbreviation, वो चल रहा है. So that's fine. What is Meanwhile, KFP? just one. Sanjeev, go ahead. हमें जी वो उसके लिए ना आपको फ्राइडे आना पड़ता है। But on a lighter note, KFP means we use 2 terminologies, KFP and BFP. So या तो लाइफ में आपको बहुत फर्क पड़ता है BFP, या क्या फर्क पड़ता है या कोई फर्क, that's KFP. Okay. क्या फर्क पड़ता है? तो जब आप लाइफ में परेशान होते हो तो we say use a mode known as KFP. क्या फर्क पड़ता है? So what? So that's like you pass through easily, and that's what I was telling Renu ji ने इसमें बहुत जबरदस्त actions करके दिखाए थे, so we know, and that's why I use this word. So that's what we use, KFP and BFP. Correct. हमारी परेशानी BFP की है, परेशानी से दूर होना तो KFP में आना पड़ता है। Right. WHHFG का एक और तरीका एक्सप्रेस There is another way I used to do that. You know, normally miserable state में बोलते हैं what, you know, joyful state में बोलते हैं so what. Yeah. so थोड़ा सा टोन बदल जाता है इसका. Normally you say what, क्या हो गया, you know, like miserable state में, उसमें so what, हो गया ना, ठीक है, देखते हैं क्या करना है. तो ये ना joyful state, जो भी होगा देख लेंगे ना, वर्कआउट करते हैं. अभी नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, कल सुबह पता लगेगा क्या करना है, कोई बात नहीं, पहले आग बुझाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. Kind of a thing. So there are various ways how we do that, and these are practical things that we have, you know, learned. तो आ जाएगा. Just I will take one more minute to explain the 5 Gyanendriya and 5 Karmendriyas. I think Neeta ji was mentioning that, right? So the 5 Gyanendriyas are the 5 sense organs that we talk of. So we know the 5 sense organs, correct? Sense of eyes, sight, hear, you know, touch, smell, and taste. Then 5 Karmendriyas. It's like your hands, your feet, then your throat, vocal cords, जिनसे हम बात करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं बाहर. तो एक input signal होते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां are the input you can say इंद्रियां, and कर्मेंद्रियां are the output ones. तो आपके 2 feet, 2 legs, 2 feet, 2 hands, then your throat, and then your 2 excretory organs, right? So these are the 5 कर्मेंद्रियां. तो इन 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू आपका बीइंग एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस होता है. So we have to consciously control these to transform our level of being. That is the understanding. Now how we do that, that's what we are looking at now. अभी being level पे आ गए, doing level पे हम उनको handle करेंगे, कैसे input आ रहा है और कैसे output जा रहा है, correct? So that is another way of doing it, but that is in the doing domain. अभी हम being level पे बात करें, इसलिए मैंने उसको touch नहीं किया, but I just remembered you had asked for it, so I thought I will clarify that. Yes, so you got a distinction. Great. Very good. And I will take one more minute. This Saturday we are starting our session, right? So everybody is clear on that. We are starting our Vedanta session. So the reviewers, whoever wants to review that, we know that. So Parth, ready for that. Amit ji, आप मेरे को मालूम है आप और पायल जी उसमें involved हैं उस session में. So I will not insist on that right now. But in case you can make it, great. Otherwise, it's fine. पहला session है, we will go a bit mild. So you can join in from the second session. But उसके बाद कोई उसके बाद कोई absenteeism allowed नहीं है. So anybody who wants to join as a graduate, and Gaurav ji, you are there, and आज पायल जी नहीं आई हैं, so rest of the people are there. Sanjay will join. So there are a few people who are in the group, we know that. So all of them will be there, and we are going to have a great time, and we are going to talk of the High Funda Vedanta Gyan. Okay, so we are going to talk of Gyan Yoga, which is my favorite and very close to my heart, and I'm committed that all of you get a lot of value. So if you have any last minute additions, who people in your life who want to join, you're welcome. Talk to me, and we can have that session from Saturday onwards. We are definitely having that session, but you can have you on board for that session, right? Yes. So we come to the end of the session now. Amit ji, aap kuch bol rahe? Okay, great. So we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week.
and those who are in the Vedanta session will meet on Saturday. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Enjoy a great day. Thank you, Bye. sir. Thank you. So